إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا فمهل الكافرين أمهلهم رويدا. پنُنُے خوٗن گژھِ تریش کٔنۍ چوٚن یے سُے گژھِ سانہِ زالُن یے لو. Successfully we have admitted more than 15 students, new students. میں نے کنفرم کی کہ ہاں جیسے میں وہاں پہ پڑھتی تھی ویسے مجھے یہاں پہ بھی پڑھایا جاتا ہے. سب بچوں کو پڑھایا جاتا ہے, مجھے ہی نہیں بلکہ سب کو. پچھلے کلاس میں آپ کی کتنی پرسنٹیج رہی تھی؟ 98.33. پرووائڈنگ کوالٹی ایجوکیشن ٹو چلڈرن از الٹیمیٹ ڈریم آف ایوری پیرنٹ. السلام علیکم ناظرین, آپ دیکھ رہے ہیں پرائم پوسٹ. میں ہوں آپ کا میزبان یاسر یوسف. اس وقت ہم موجود ہے ضلع کلگام کے وانی گنڈ کوئمو علاقے میں, اور اس وقت میں موجود ہوں گورنمنٹ مڈل اسکول وانی گنڈ میں. ناظرین, جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ موجودہ دور میں ہر کوئی چاہتا ہے کہ ان کے بچے پرائیویٹ اسکولوں میں تعلیم حاصل کر کے اچھے عہدوں پر فائز ہو جائے, لیکن آج کے والدین سرکاری اسکولوں پر کم اعتبار کرتے ہیں. ان کو لگتا ہے کہ سرکاری اسکولوں میں ان کے بچے پوری طرح سے گرو یا ایکسپلور نہیں کر سکتے. لیکن میں آپ کو بتاتا چلوں کہ آج کل ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ بہت زیادہ کوشش کر رہا ہے کہ سرکاری اسکولوں میں تعلیمی نظام بہتر ہو جائے, اور گورنمنٹ اسکولوں میں پرائیویٹ اسکولز کے بنسبت زیادہ کوالیفائڈ ٹیچرز ہوتے ہیں. آئیے آپ کو ایک جیتی جاگتی مثال دکھائے کہ کس طرح سے ایک سرکاری مڈل اسکول تعلیمی نظام کو بہتر کرنے میں لگا ہوا ہے. کون کون سی ایکٹیویٹیز آپ کرتی ہو جب آپ کا لنچ ٹائم ہوتا ہے, بریک ہوتا ہے؟ سر ہم یہاں پر کرکٹ کھیلتے ہیں سر, اور والی بال بھی کھیلتے ہیں, کچھ بچے فٹ بال بھی کھیلتے ہیں سر, اور بھی بہت سارے چیز ہوتے ہیں سر. پڑھائی کے ساتھ ساتھ آپ کن چیزوں میں دلچسپی رکھتے ہو؟ سر پڑھائی کے ساتھ ساتھ ہم سر کرکٹ میں زیادہ دلچسپی رکھتے ہیں سر, اور اسٹڈی کے بھی دلچسپی رکھتے ہیں بہت سر بھی, اور قرآن پڑھنا بہت اچھا لگتا ہے. قرآن پڑھنا بہت اچھا لگتا ہے. یس سر. آپ کو کوئی فرق نظر آتا ہے پرائیویٹ اسکول میں اور آپ کے مڈل اسکول میں؟ سر مجھے کوئی فرق نظر نہیں آتا, کیونکہ میں یہاں پر فری ایجوکیشن حاصل کرتا ہوں. بس پرائیویٹ اسکول اور گورنمنٹ اسکول میں اتنی فرق ہے کہ پرائیویٹ اسکول سے اچھی پڑھائی ہمارے اسکول میں ہے, اور میں فری پڑھائی یہاں پر حاصل کرتا ہوں. آپ کو مڈ ڈے میلز یہاں پہ ملتے ہیں؟ یس سر. اچھا, اس سے پہلے آپ آن لائن کلاسز دیتی تھی, کیا فرق نظر آتا ہے آپ کو آن لائن اور آف لائن کلاس میں؟ آن لائن اور آف لائن کلاس میں بہت فرق ہے. آن لائن میں ہمیں زیادہ سمجھ بھی نہیں آتا تھا, اور ہم اپنے فرینڈس کے ساتھ بھی نہیں ملتے تھے. جب سے اسکول کھلا ہے میں بہت ہی اچھا فیل کروں, کیونکہ میں اپنے فرینڈس کے ساتھ کھیلتی ہوں, بہت ہی اچھا فیل کرتی ہوں. بہت اچھا فیل کر رہی ہوں, کیونکہ گھر میں ایسی پڑھائی نہیں ہوتی تھی جیسے اسکول میں ہے. ٹیچرز ہمارے سارے ڈاؤٹس کلیئر ہوتے ہیں اسکول میں, کہ آن لائن ایسا نہیں ہوتا تھا. آپ کی ایم کیا ہے؟ واٹ از یور ایم ان لائف؟ میں ایک اسلامی عالمہ بننا چاہتی ہوں, اور وہ بھی ایسے ہو کہ جب میں اسکول آؤں گی اسکول کی تعلیم حاصل کروں گی. بچہ آپ اپنے اسکول میں اور کیا کیا فیسلٹیز چاہتی ہو؟ الحمدللہ ہمارے اسکول میں ساری فیسلٹیز اچھی ہے. اب ہم ایک کمپیوٹر لیب چاہتے ہیں, کیونکہ آج کا ماڈرن زمانہ ہے, تو ہم بھی کمپیوٹر سیکھنا چاہتے ہیں, بہت ترقی کرنا چاہتے ہیں. واٹ رول ڈو یور ٹیچرز پلے ان یور اسٹڈیز؟ Our teachers play very an important role in our studies. They educate us, they aware us from general knowledge and other skills. جب آپ کے ایگزامز ہوتے ہیں تو ایگزام پریپریشن کے لیے آپ کے ٹیچرز آپ کو کتنا گائیڈ کرتے ہیں, کتنی مدد آپ کو ملتی ہے ٹیچر سے؟ ہمیں اپنی ٹیچر سے بہت زیادہ مدد ملتی ہے. وہ ایگزام سے پہلے ہی ہماری پریپریشن کر کے رکھتے ہیں کہ ایگزام میں یاد کرنا, پھر ایگزام کے وقت اس وقت یاد نہیں کرتے. ایگزام سے پہلے ہی ہماری پریپریشن ہوتی ہے ٹیچرز سے. 2 سال کے بعد آپ اسکول آئی ہو, کیسا آپ محسوس کر رہے ہو اسکول میں؟ میں بہت اچھا فیل کرتی ہوں. جب میں 2 سال کے اسکول میں آئی ہوں تو مجھے بہت اچھا ہوتا ہے. جب میں دوستوں سے ملتی ہوں, کہ میں نے دوستوں سے ملے, اس لیے مجھے بہت اچھا یہاں پہ فیل ہوتا ہے جب میں یہاں پہ آئی اسکول میں. تو اچھا, آپ کی ایم کیا ہے زندگی میں؟ آپ کیا بننا چاہتی ہیں؟ خواہش ہے کہ میں ڈاکٹر بننا چاہتی ہوں. آپ ڈاکٹر بننا چاہتی ہو. موسٹلی اٹ از سین دیٹ پیرنٹس پریفر ٹو ایڈمٹ دیئر چلڈرنز ان private schools. How will you catch the attention and minds of people so that they will admit their daughters in government schools or in middle school just like in yours? Bismillahirrahmanirrahim. First, I will thank you for spotlighting our school to public. As far as your point goes, you might be knowing about the fact that from teacher to directorate level, we have recently launched enrollment drives in which we have captured the attention of society so that they can admit their wards in our schools. And more than 30,000, we have, by the grace of Allah, successfully admitted more than 30,000 students in government schools. And same is the case here. We have performed 3-4 enrollment drives and captured the attention of society towards our school recently. Sir, what is the role of society as far as your school is concerned?
Society has a major role. As we know, you might be knowing about the fact that this is a tripolar process in which society is an essential and key stakeholder, and if they play their role, then the success of these government schools is 100% ensured, and it can be just maintained and retained. The infrastructure, the other facilities available, you yourself have seen the grassy ground precisely fenced by a proper fencing, accommodation, classrooms studied with teaching aids, scientific paraphernalia, sports activities, recreational activities are in full bloom in government schools. Specialized teachers, whatever is necessary for proper schooling, that is all available here, and that too free of cost. We have free uniform, free education, free lunch, free these books, everything is available here free of cost. But I don't know why the people prefer private schools. The free and compulsory education is known to everybody. What will be your message for the parents who admit their daughters in private schools? My message to the parents who prefer private schools, one is they come here, see the infrastructure, see the teaching methodology here, see the other activities, co-curricular activities in our schools. When they will get satisfied, then they admit their daughters. But I have a message for them that they should come to our school, see from their own eyes what is the modus operandi in this school. Then they will definitely admit their daughters here. But once they come here, our message is they should come here, see the methodology, see the other activities in our school, then they will definitely prefer to admit their daughters in our school. मैम किस तरह की तब्दीली आपके स्कूल में देखने को मिल रही है? अल्हम्दुलिल्लाह कोविड के बाद बच्चे आ गए स्कूल में, तो स्कूल में बहुत सारी तब्दीलियाँ आ गई। 2 सालों से बच्चे घर में बैठे थे, नई पॉलिसियाँ गवर्नमेंट ने चालू की है, तो नई पॉलिसियों का भी बहुत सारा लाभ जो है बच्चों को मिल रहा है। टीचर्स बहुत हार्ड वर्किंग है, बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, बच्चे अच्छी तरह से पढ़ रहे हैं। 2 सालों से इनको बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ था, ये लोग घरों में अच्छे से पढ़ नहीं पा रहे थे, और अब स्कूल खुल रहे हैं तो इंशाल्लाह बहुत ही अच्छे तरीके से ये पढ़ पा रहे हैं, टीचर्स मेहनत कर रहे हैं। मैम गवर्नमेंट स्कूलों में टीचर जो है वो क्या चैलेंजेस फेस करते हैं? चूँकि अक्सर बेशतर देखने को मिलता है यहाँ पे सरकारी स्कूलों में फाइनेंशियली वीक स्टूडेंट्स होते हैं और पेरेंटल केयर कम देखने को मिलता है। जी, आपने बहुत ही अच्छा सवाल पूछा, ये बहुत सही बात है। बहुत सारे बच्चे हमारे पास भी ऐसे आते हैं, हम स्कूल के बाद डिपार्चर के बाद जब हम घर जाते हैं तो हम बहुत सारे पेरेंट्स को बोलते भी हैं कि आप अपने बच्चों को हमारे घर में भी भेजा कीजिए। लॉकडाउन के दौरान में हमने बच्चों को बोला था, जब थोड़े से हालात बेहतर हो गए थे तो, लेकिन बहुत सारे पेरेंट्स ऐसे होते हैं, ये एक्चुअली ये बच्चे जो होते हैं इन घरों से ताल्लुक़ रखते हैं जहाँ पर इनको बिल्कुल भी केयर नहीं मिलती है पेरेंट्स की, तो बिल्कुल भी वो मानते नहीं हैं कि हम इन बच्चों को घर में आपके लोगों के पास पढ़ाने के लिए भेजेंगे। तो 1-2 बच्चे आते हैं, इंशाल्लाह उनको हम बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं। स्कूल में भी बहुत सारी हार्ड वर्क हम करते हैं, इनको पेरेंटल केयर नहीं होता है, हम उसके लिए भी इनकी हेल्प करते हैं कि आप इनको हमारे घर भेजो, हम उनको घर में भी पढ़ा सकते हैं। लेकिन इनके पेरेंट्स जो होते हैं बेचारे उतने ये नहीं होते हैं कि फाइनेंशियली भी साउंड नहीं होते हैं, और उनको इतनी पता भी नहीं होती है कि बच्चों की देखभाल कैसे करनी होती है। सर क्या वजूहत आपको लग रहे हैं कि जो पेरेंट्स हैं उनको एतबार उठ चुका है सरकारी स्कूलों पर? इसकी सबसे बड़ी वजह है सर कि एक तो वो हालात थे 90 की दहाई से पैदा हुए कि सरकारी इदारे अक्सर बंद होते रहते हैं, लेकिन सिर्फ मैं ये कहता हूँ कि ये आदत पड़ी है लोगों की कि वो अपने बच्चों को एक तो प्राइवेट स्कूलों में भेजते हैं और फिर भी ट्यूशन के लिए भेजते हैं। आप चाहते हो कि जो सोसाइटी है वो खबरदार हो जाए और कभी बिल्कुल मैं चाहता हूँ, मैं सोसाइटी को दावत देता हूँ, जो आसपास के इलाके हैं, कयमू है, बाकी जो गाँव हैं, रेडवनी है वगैरह, आप आइए हमारे स्कूल में, मिडिल स्कूल वानीगुंड में आइए, आप देखिए क्या क्या है सरकारी स्कूलों में, मतलब किसी चीज़ की कमी नहीं है। फोटोस्टेट तक हमने यहाँ रखा है अवेलेबल, अगर कभी भी ज़रूरत पड़े बच्चे को, पेरेंट को, वो फोटोस्टेट भी किसी चीज़ का ले सकता है। बाकी खाना, उन बच्चों के लिए अच्छी मैटिंग, अच्छी सहूलियात, सफाई का इंतज़ाम, आप देखिए, आप आए, आपने देखा 2 दिन में क्या है यहाँ क्या नहीं है। लिहाजा मैं उन्हें भी दावत देता हूँ कि वो पेरेंट्स जो मेरे से बड़े हैं या छोटे हैं, भाई बहन हैं, वो यहाँ आए और देखें कि सरकारी स्कूलों में क्या फैसिलिटी है। सर, ड्यू टू राइज इन प्राइवेट स्कूल्स इन जम्मू एंड कश्मीर देयर हैज बीन अ डिक्लाइन इन नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन गवर्नमेंट स्कूल्स, इसके पीछे सर आप क्या वजूहत हो सकती है? सरकार ये जो प्राइवेट स्कूल है ना, ये हर गली में प्राइवेट स्कूल है, हर गली में प्राइवेट स्कूल। मैं गवर्नमेंट से इस्तेदा करता हूँ कि ये प्राइवेट स्कूल बार बार अब खोल रहे हैं लोग, बिजनेस के लिए इनको बंद किया जाए, जो नए खोल रहे हैं।
और जो पुराने भी हैं, मतलब अगर स्कूल, अगर एक डिस्ट्रिक्ट में 10 स्कूल चाहिए, वहाँ 20 स्कूल है, लिहाजा मेहरबानी करिए 10 को बंद करिए, 10 को रखिए, 4 को बंद करिए, 4 को रखिए। तो इससे इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि ये जो देता है बच्चों की हर जगह बढ़ जाएगी। सर, क्या आपका स्कूल जो आसपास के यहाँ पे प्राइवेट स्कूलों से उनसे कम्पीट कर सकता है? बिल्कुल कर सकते। क्यों, देखिए कहाँ पर है, देखिए मेरा स्कूल है यहाँ पर, सर सैयद मेमोरियल है, यहाँ है दूसरा प्राइवेट स्कूल है, देखिए वहाँ क्या है, यहाँ क्या है। आप देखिए वहाँ की जमलिक, आप देखिए यहाँ का सुकून, कमरे में मैटिंग क्या है, बाकी सफाई का इंतजाम क्या है, खाने पीने का इंतजाम, मुफ्त वर्दी, मुफ्त किताबें, इससे ज़्यादा क्या हो सकता है फिर? सर, अगर हम पेरेंटल मीटिंग्स की बात करें, अक्सर बेशतर जो पेरेंटल मीटिंग्स होती है प्राइवेट स्कूल्स में देखने को मिल रही, आप कब ये पेरेंट्स मीटिंग्स करते हो? क्या ये मंथली बेस्ड होती है? देखिए जनाब, हम प्राइवेट जो पेरेंट्स मीट हम करते हैं ना, प्राइवेट पेरेंट्स मीट, तकरीबन हम हर महीने लोगों को बुलाते हैं, लेकिन एक बदकिस्मती है, लोग आते नहीं हमारे स्कूल में। ये जो मेरे प्राइवेट स्कूल है, मैंने कभी नहीं देखा कि वहाँ कोई मीटिंग हो रही है। कि किस तरह से आपका मिडिल स्कूल तालीमी निज़ाम को बेहतर करने में लगा हुआ है? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। इसके बारे में आप क्या बताना चाहोगे सर? बिल्कुल, इंशाल्लाह मेरी कोशिश रहेगी, मेरा अभी 1.5 साल बाकी है रिटायरमेंट तक, मैं कोशिश करूँगा जितना मुझे हो सके, मैं वो कोशिश करता रहूँगा इसको बेहतर बनाऊँ। मैंने हर वक्त बेहतर बनाया भी है, और मैं जहाँ भी गया मेरा स्कूल बच्चों से इंशाल्लाह हमेशा पुर था, हमेशा वहाँ बच्चे थे, मैं कभी खाली हाथ घर नहीं आया, या कोई दिन नहीं था जब मैंने बच्चों को नहीं देखा है। मैं बच्चों को देखता हूँ तो मुझे सुकून मिलता है, बच्चों को नहीं देखूँ तो मैं बेआराम हो जाता हूँ। सर, हमने कई स्टूडेंट्स आपके स्कूल में देखे जो प्राइवेट स्कूलों से निकल के आपके स्कूल में एनरोल हुए हैं, तो कितनी मसरत आपको हुई उस टाइम? बहुत बड़ी खुशी है मेरी कि मेरे स्कूल में इतना स्कूलों का यहाँ हब है, फिर भी मेरे स्कूल में 110 बच्चे मौजूद हैं। इंशाल्लाह अच्छी पढ़ाई, अच्छा खाना पीना, अच्छी सफाई, जो भी इंतजाम, अच्छा खेलों का इंतजाम, सब कुछ मेरे स्कूल में अवेलेबल है। सर, अगर हम अफोर्डेबल एजुकेशन की बात करते हैं और क्वालिटी एजुकेशन की बात, यहाँ पे फ्री एजुकेशन मिलती है, फ्री एजुकेशन, फ्री बुक्स। सर, क्या आपको लगता है, लोगों को शायद यही लगता है कि यहाँ पे फ्री एजुकेशन है तो यहाँ पे शायद असातिज़ा किराम पढ़ाते नहीं होंगे? नहीं, ऐसी बात नहीं है, कोई ये नहीं कहेगा हमारी बच्चे भी ये पढ़ाते नहीं है। कभी इस घर से कोई पेरेंट नहीं आया कि आपके हेडमास्टर बेकार बैठे हैं, आपके टीचर्स बेकार बैठे हैं। आप घर घर जाइए, यहाँ जो भी मेरी बस्ती है, गाठ वगैरह जो भी मेरी बस्ती है, वानीकोट सारा, आप घर घर जाए, फिर उन्हें बताइए कि यहाँ का हेडमास्टर साहब, यहाँ के टीचर्स क्या करते हैं, वो खुद कहेंगे आपसे। सर, क्योंकि हर किसी को पता है यहाँ पे बहुत अच्छी, तभी मैं यहाँ पे आया हूँ, यहाँ पे बहुत अच्छी तालीम है और प्राइवेट स्कूलों से निकल के स्टूडेंट्स यहाँ पे आए हैं, मगर लोग ये समझने के लिए तैयार क्यों नहीं है वो अपने बच्चों को? सर, इस बारे में वो अपने काम में लगे हैं, जो यहाँ के ये लोग हैं ज़्यादा सब्जी का काम करते हैं, फेरी का काम करते हैं, वो सुबह 7 बजे निकलते हैं, शाम को 9 बजे घर पहुँचते हैं। उनको पता ही नहीं है बच्चे दिन भर कहाँ थे, किस स्कूल में, अभी इनको भी ये भी नहीं मालूम किस स्कूल में वो पढ़ते हैं। लिहाजा अब इसमें मैं क्या कर सकता हूँ सर? अगर दावत देनी है अच्छाई की तरफ। बिल्कुल सर, अगर हम एजुकेशन सिस्टम की बात करें तो ये एक ट्राइपोलर सिस्टम होता है, ट्राइपोलर प्रोसेस है। तो उसमें उस्ताद है, बच्चा है, पेरेंट्स है नहीं कहीं, अब बच्चा है, ये कभी स्कूल से भाग भी जाता है 2-4 दिन, वो भी हो सकता है, फिर हम घर जाते हैं, उनको बुलाते हैं, लेकिन ये दो लाइन है सिर्फ इसमें, एक लाइन गैरेजर है, वो तो पेरेंट्स हैं। बिल्कुल तिकून पूरा बनता नहीं, अगर तिकून पूरा बनेगा तो सब कुछ ठीक ठाक हो जाएगा। सर, और किन फैसिलिटीज़ की इस स्कूल को ज़रूरत है? इंशाल्लाह फैसिलिटीज़ तो यहाँ सारी इस वक्त हैं, लेकिन कुछ है अभी, जो हमारा फील्ड है सर, थोड़ा एक साइड में गहरा है, और ये जो बड़ा मसला है, कभी कभी यहाँ पानी नहीं हमें मिलता है, वो पाइप जो होती है ना सरकारी तौर पर, पानी यहाँ कम, इस गाँव में ही पानी कम है, इस बस्ती में ही कयूमू से लेकर यहाँ खुड़वनी वगैरह का यहाँ पानी कम है, पानी कम ही मिलता है यहाँ, ये प्रॉब्लम है। तो नाज़रीन, देखा आपने कि अब किस तरह से सरकारी स्कूलों में तब्दीली देखने को मिल रही है। ज़रूरत इस बात की है कि हम इन सरकारी स्कूलों को भी वही इंपॉर्टेंस दें जो हम एक प्राइवेट स्कूल को देते हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। आप बने रहे प्राइम पोस्ट के साथ, दीजिए अपने मेज़बान यासिर यूसुफ को इजाज़त। अल्लाह हाफिज़ व नासिर।